We are doing this chapter 4, Animal Kingdom, and in yesterday's lecture, I have discussed about the various characters that actually act as the base for the classification in Kingdom Animalia. So let us recall once. The levels of organization is the first character. Okay, that is generally considered here. Another is symmetry. So levels of organization में मैंने आपको बताया था there are 4 levels of organization. First is cellular level of organization, for example, in phylum Porifera. Then we have tissue level of organization, where the cells they later form tissues, those cells which are similar in structure and performing similar functions. So this level of organization, which is a little bit advanced than the cellular level of organization, it is a tissue level of organization. And it is actually present in phylum Coelenterata, which is known as Cnidaria, and phylum Ctenophora. Okay, you have not heard about the phylum Ctenophora, so it is a small phylum after phylum this Cnidaria, which is also known as Coelentrates. तो Ctenophora जो phylum होते हैं ना, उसमें sea walnuts आ जाते हैं, ठीक है? And these sea walnuts, they are such type of animals which also have the property to produce bioluminescence. Means when they swim in the water of oceans, so they emit different color lights, so you can easily identify these animals. So इनको हम ctenophores कहते हैं, ठीक है बेटे? थर्ड मैंने आपको बताया था कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से जो एडवांस्ड लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो फ्लाइलम प्लेटीहेल्मिन्स व्हिच आर नोन एज फ्लैटवर्म्स, इनमें टिश्यू लेवल इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है. एंड उसके बाद के जो एनिमल्स हैं, एस्कलमेंट्स आ गए जिसमें राउंडवॉर्म्स हैं, एनालिड्स, आर्थ्रोपॉड, मोलस्कस एंड अप टू कॉर्डेट्स. We have organ system level of organization where all the organs they work in a coordinated manner to form different type of organ systems. Okay बेटे, सिमेट्री में मैंने आपको बताया था कि सिमेट्री के बेसिस पे एनिमल्स जो है हमको 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है. They may be asymmetrical animals, they may be radially symmetrical, they may be bilateral. Okay, on the basis of embryonic layer, so as 3 embryonic layers are present in the embryo of an animal, these may be outer layer ectoderm, middle layer mesoderm, and innermost layer endoderm. So if 2 layers are only present, outer and the inner one, that is ecto and the endo, okay, so such type of animals are diploblastic. But if along with the 2 layers, the middle layer is also present, ectoderm, mesoderm, and endoderm, all the 3 embryonic layers are there. तो such type of animals are known as a triploblastic. Okay, बेटे सिलोम के बारे में मैंने आपको बताया था कि there is a body cavity present between the body wall and your visceral organs, means your internal organs. So there are so many internal organs present in your body. So all of these organs, they are covered by a body wall, but there is a space between the body wall and these internal organs. So that is known as body cavity. Okay, it is known as coelom. So if a coelom which is surrounded by well-developed mesoderm layer is present, such type of animals are coelomate. If coelom is absent, animals are acoelomate. And if the coelom is lined by partially developed mesodermal layer, then the animals are known as pseudocoelomates. जी बेटे, segmentation के बारे में मैंने आपको बताया था कि there are some of the animals which have characteristic design present on their body surface. ठीक है, these designs are actually in the form of segments. So the phenomenon is known as metamerism or metameric segmentation. So chiefly this metameric segmentation, it is present in the phylum. ठीक है, and the name of the phylum is phylum Annelida, and segmented worms में जो है वो phylum Arthropoda में भी नजर आती है, class Insecta. ओके बेटे, डॉर्स उसके बाद है नोटोकॉर्ड के बेसिस पे. तो व्हाट इज नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड जो है वो मिडल लेयर, मिडल एम्ब्रियोनिक लेयर जिसे हम मेसोडर्म कहते हैं, उससे डेवलप एक रॉड लाइक टफ स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी एनिमल की डॉर्सल बॉडी में, डॉर्सल सरफेस में बॉडी की प्रेजेंट होता है, जो बाद में स्पाइनल कॉर्ड का रूप ले लेती है. इट इज नोन एज नोटोकॉर्ड. तो जितने भी कॉर्डेट्स है ना, दे ऑल हैव नोटोकॉर्ड्स. And if we consider from phylum Porifera to phylum Echinodermata, which are spiny skinned animal, for example starfishes, तो इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए हम इनको जो है
वो नॉन कॉर्डेटा के अंदर रखते हैं, और नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बीच में हेमिकॉर्डेट्स भी आ जाते हैं, जिनमें नोटोकॉर्ड जो है इट इज प्रेजेंट इन हाफ ऑफ देयर बॉडी, एंड एट हाफ ऑफ द बॉडी नोटोकॉर्ड इज नॉट देयर, सो दे कम अंडर हेमिकॉर्डेट्स। ओके बेटे, तो ये सारा हम कर चुके हैं। अब अपनी एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे पेज नंबर 49 अकॉर्डिंग टू माय बुक, broad classification of kingdom Animalia is present based on the common fundamental features. So this chart which I am showing you on the screen is not the complete one, but you have to see the chart that is given in your NCERT book. See this chart. ठीक है, यहाँ पे देखिए ये येलो कलर का जो आपको चार्ट नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, ये वाला, ये चार्ट सभी बच्चों ने देखना है। ओके, फिगर नंबर 4.4। तो देखिए आपको बताया उसने क्लासिफिकेशन में किंगडम इज एनिमेलिया। ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि ऑल द मेंबर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया दे आर द मल्टीसेलुलर एडवांस्ड टाइप ऑफ एनिमल्स। ओके बेटे, देन अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वी हैव द 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं एनिमल्स तो दे कम अंडर पॉरीफेरा, तो वो फाइलम पॉरीफेरा को बिलोंग करेंगे। ठीक है, पोर बियरिंग एनिमल्स नोन एज स्पॉन्जेस। And besides cellular level of organization, there may be tissue level of organization, organ level of organization, or organ system level of organization. Okay, students. So if the animal have tissue level of organization, ठीक है, तो according to their symmetry, the animal may have radial symmetry or bilateral symmetry. तो पहले हम याद रखेंगे कि अगर एनिमल जो है उसके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी सिमेट्री रेडियल सिमेट्री है, तो हमारे पास 2 फाइलम है, फाइलम सिलेंड्रेटा which is also known as phylum Nidaria and phylum Ctenophora which is also known as sea walnuts। ठीक है, तो दोनों में ही टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और सिमेट्री कौन सी है, रेडियल सिमेट्री। ओके बेटे, दूसरी कंडीशन हो सकती है कि अगर उनमें ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और उनकी सिमेट्री कौन सी है, बाइलेटरल सिमेट्री है, तो 3 केसेस हो सकते हैं। whether these animals are without body cavity, whether the body cavity is the not fully developed or false coelom is present, or whether a complete body cavity is there। ठीक है, तो फिर से सुनेंगे, अगर एनिमल्स में ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और उनकी सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री है और उनमें बॉडी कैविटी नहीं है, ठीक है, the body cavity is absent, this means the animals are platyhelminths, means flatworms। अगर एनिमल जो है उसमें ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरल सिमेट्री है और सिलोम कैविटी जो है वो फुली डेवलप नहीं है, फॉल्स सिलोम है, तो एनिमल्स जो है वो एस्कलमेंट्स हैं which are known as roundworms। And what is the third condition? Third condition is if the animals have organ system level of organization, bilateral symmetry is there and true coelom is also present. This means so many phyla they come under this. They may be the member of phylum Annelida, phylum Arthropoda, phylum Mollusca, phylum Echinodermata, phylum Hemichordata और phylum Chordata। ठीक बेटे, तो ये सारे जो है इसको इसी तरीके से हमने लर्न करना है अकॉर्डिंग टू दिस फ्लो चार्ट व्हिच इज गिवन इन फिगर 4.1। 4.4 में ये पेज नंबर 40 है। Okay, so starting with the first phylum, that is phylum Porifera. So see the pictures that are visible on your screen. So most of the members of the phylum Porifera, they are actually the sponges। ठीक है, ये sponges होती है, इनको commonly हम sponges के name से जानते हैं। And most of the animals are found in oceans. This means these animals are the marine animals। ये marine animals हैं। ठीक है, if we are talking about their symmetry, अगर हम इनकी सिमेट्री की बात करें तो these animals are asymmetrical animals। ये एनिमल्स कैसे हैं, asymmetrical animals हैं। asymmetrical animals are those animals when we cut the body of the animal in any of the plane, we are not able to get equal halves in any of the plane, then such type of animals are known as asymmetrical animals। ऐसे एनिमल्स को हम asymmetrical animals कहते हैं। ठीक है बेटे, तो पॉइंट नंबर 1, दे आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। पॉइंट नंबर 2, दे आर फाउंड इन ओशंस, thus they are the marine animals। पॉइंट नंबर 3, these animals they have asymmetrical type of body। इनकी बॉडी कैसी है, asymmetrical है। if you divide the body of the animal in any of the
plane. You are not able to get an equal half in any of the plane. तो दिस मीन्स कि एनिमल्स जो है उनकी जो बॉडी है वो कैसी है, तो बॉडी उनकी एसिमेट्रिकल है। ठीक बेटे, उसके बाद वो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स ऑफ द फाइलम पॉलीफेरा आर द मल्टी सेलुलर एनिमल्स। ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं और उनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स इनकी बॉडी जो है वो काफी सारे सेल से मिलकर बनी हुई है एंड दे आर एक्चुअली द लूज एग्रीगेट ऑफ सेल्स। ठीक है, सारे के सारे सेल्स जो हैं वो लूज एग्रीगेट की फॉर्म में है। सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर इज देयर बट दे आर नॉट फॉर्म्ड टिश्यूज। अभी तक उन्होंने टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं किया, इसलिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बेटे, another very important point is presence of water transport system or canal system। ठीक है, इनकी बॉडी जो है स्पॉन्जेस की जो बॉडी है उसमें खूब सारे पोर्स आर प्रेजेंट and these pores they are playing an important role in their canal system। ठीक है, और वाटर you can say water transport system या फिर जिसको हम canal system कहते हैं। तो when the water current they passes over their body और इनकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं बिकॉज देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ सो मेनी पोर्स। तो इनके जो पोर्स है ना उसमें से आपको वाटर जो है वो निकलते हुए नजर आता है, तो इसलिए आपको जो है वाटर की कैनाल्स नजर आती है। ओके, तो ये इसका नेक्स्ट पॉइंट है। उसके बाद देखिए प्रेजेंस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। वाटर एंटर्स थ्रू स्मॉल पोर्स। वाटर जो है वो स्मॉल पोर्स में से एंटर होता है। दीज स्मॉल पोर्स आर नोन एज ऑस्टिया। इनको क्या नेम दिया गया है? ऑस्टिया दिया गया। इनकी बॉडी वॉल में खूब सारे स्मॉल पोर्स हैं व्हिच आर नोन एज ऑस्टिया and through which the water currents they enter into their body and they also comes out from their body। ठीक है बेटे, तो वाटर जो है जब इन ऑस्टिया में से पास होता है जो इनकी बॉडी वॉल में प्रेजेंट है, then this water it actually reaches the central cavity। उसके बाद वाटर जो है वो सेंट्रल कैविटी में पहुंचता है एंड दैट सेंट्रल कैविटी इज नोन एज स्पॉन्जोसील। ठीक है, और ये जो सेंट्रल कैविटी है उसको क्या नेम दिया गया है? स्पॉन्जोसील का। ओके बेटे, उसके बाद वो कहते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स आर देयर। स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट व्हिच आर नोन एज कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स। ठीक है, तो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट व्हिच लाइंस दिस बॉडी कैविटी और स्पॉन्जोसील and they are known as collar cells or osteocytes or collar cells or choanocytes। Okay, then if we talking about their body infrastructure, so body is made up of a skeleton containing spicules or spongin fibers। इनकी जो बॉडी है वो जिस स्केलेटन से मिलकर बनी हुई है उसमें स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रेजेंट है। ओके, डाइजेशन की अगर हम बात करें एनिमल की डाइजेशन की, तो डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर डाइजेशन इसके अंदर होता है, यानी एनिमल जो है इट इनगल्फ्स इट्स फूड इनसाइड द बॉडी एंड विद इन द बॉडी द डाइजेशन ऑफ द फूड इट टेक्स प्लेस, दैट इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन इज देयर। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट इज वेरी मच हेल्पफुल इन कैरिंग आउट द फूड। ठीक है, वाटर जो है वो फूड जो उनकी बॉडी में लेकर जाता है, रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज भी करती हैं वाटर करंट्स and also involved in the removal of the waste product। waste products जो हैं उनको भी इनकी बॉडी से रिमूव करने का काम करती है। ओके बेटे, तो रिगार्डिंग देयर सेक्सेस, अगर हम सेक्सेस की बात करें तो एनिमल्स आर हर्माफेरोडाइट। एनिमल्स जो हैं वो हर्माफेरोडाइट है, यानी they have different they do not have different type of sexes, both the male and the female sex organs they are present inside the body of the same animal। same animal की बॉडी में ही मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो यहाँ पर जो है प्रेजेंट है। ठीक है, तो inside the body of the same animal male sex organ is also there, female sex organ is also there। ठीक है, स्पॉन्जेस जो हैं उनमें मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? तो asexually these animals they reproduce with the method of fragmentation। So body is divided into so many fragments and each fragment is able to produce the entire animal। And regarding their sexual method of reproduction, तो sexual method कैसे होता है इसमें? तो sexually they reproduce by the formation of gametes। ठीक है, ये special type of gametes जो है उनका formation करते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। ठीक है, बॉडी के अंदर ही मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर देयर, तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स दे फ्यूज इनसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल एंड दे फॉर्म द zygote।
सो फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, और कहता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट कैसे होता है, तो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। लार्वल स्टेजेस दे आर वेरी मच डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट स्टेज। तो अपने लार्वल स्टेजेस में ये एनिमल्स बिल्कुल अलग नजर आती हैं, पर जब ये एडल्ट बन जाते हैं तब ये हमें डिफरेंट नजर आते हैं। ओके बेटे, इफ यू हैव टू गिव द एग्जांपल, तो सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ स्पॉन्जेस आर देयर। नंबर 1 साइकन, ठीक है, साइकन जिसको कि हम स्काइफा भी कहते हैं। उसके बाद देखिए स्पॉन्जेला, स्पॉन्जेला विच इज द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, and Euspongia which is commonly known as the bark sponge, ठीक है। तो all of these they come under sponges। तो इसको लर्न कैसे करना है उसका मेथड मैं आपको बता रही हूँ कि you have to take 2 phyla together and compare the characters that are given in phylum 1 with the another phylum, that is phylum 2. Suppose I have to learn the features of phylum Porifera, so I have to write down all the characters of phylum Porifera in one column, and in another column I have supposed to write the characters of phylum Coelenterata. So I have compared the characters of Porifera with Coelenterata, then it is very much helpful for me to memorize the characters. Okay students, उसी तरह से मैंने अपनी नोट्स की कॉपी में भी लिखा है, will send you the notes soon so that you can be able to comprehend. So we are revising again. So phylum Porifera, most of the members of phylum Porifera are multicellular advanced type of animals. They are commonly known as sponges. Okay बेटे, point number 2, animals का habitat क्या है, तो they are marine animals found in oceans. Point number 3, most of the animals have cellular level of organization and which consist of loose aggregate of cell. Point number 4, regarding their body organization बता दिया आपको, cellular level of organization is there, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि another very important thing is regarding the symmetry. So most of the animals are asymmetrical animals. If you divide the body of the animal in any of the plane, you are not able to get equal half. Okay, another important point is presence of water transport or canal system, ठीक है। तो there are so many pores present on the body of the animal and each pore is known as ostia, through which the water currents enters. And when you see that these water currents enter through these minute pores which are known as ostia, so it gives you a feeling of water canal system. Okay, so there is a central cavity present inside the body which is known as a spongocoel. So all the water it finally enters into this central cavity known as a spongocoel, ठीक है। presence of special type of cells known as choanocytes or collar cells, खास तरह के सेल्स होते हैं जिनको कोएनोसाइट्स एंड कॉलर सेल्स कहती हैं, एंड these collar cells they surrounds the central cavity spongocoel. Then body is made up of a skeleton, and skeleton में छोटे छोटे से fibers present हैं जिन्हें spicules या फिर spongin fibers कहते हैं, ठीक है। बॉडी जो है उसमें डाइजेशन कैसे होता है, तो डाइजेशन जो है वो वाटर कैनाल सिस्टम के जरिए होता है, and the water they enter through the osteas. And this water not only bring food for the animal, but it is also involved in the exchange of gases as well as the removal of the waste product. Okay, but the next is animals hermaphrodite, means both the sex. Yes, but wait for a moment, there is some network issue. Okay, what I am saying कि एनिमल जो है वो hermaphrodite एनिमल है, तो if the animal is a hermaphrodite animal, अगर एनिमल जो है वो hermaphrodite एनिमल है, तो this means the male and the female sex organs they are present inside the body of the they are present inside the body of the animal. हाँ जी बेटा, my voice is audible now? Yes students, speak up. Yes बेटा, my voice is audible? Yes Dhanika? Yes. There is some Yes, network issue, पर मेरी तरफ से माइक ऑन है बेटे, तो my voice should be audible to you, ठीक है। I think so. If student is not able to hear me, this means the network issue is there with that student. Okay बेटे, now my screen is also visible. Yes children, my screen is visible now. Yes ma'am. Okay बेटे, okay.
तो मैं आपसे ये कह रही थी कि एनिमल इज अ hermaphrodite animals means the sex organs, male and female sex organ, they are present inside the body of the same animal. ठीक है, सेम एनिमल की बॉडी के अंदर ही मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है. फ्यूजन भी बॉडी के अंदर ही होता है. फर्टिलाइजेशन इज आल्सो देयर. ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ जाइगोट. जाइगोट फॉर्म करते हैं. और उसके बाद वो कहते हैं कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन. ठीक है, बॉडी के कई सारे फ्रैगमेंट्स हो जाएंगे एंड ईच फ्रैगमेंट दे लेटर हैज टू form the entire animal. And if we are talking about the sexual reproduction, तो sexual reproduction by the formation of the gametes, क्योंकि gametes जो है वो भी बॉडी के अंदर ही बनेंगे, उनका फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन भी बॉडी में ही होगा. ठीक बेटे, एग्जांपल्स में यू हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स. ठीक है, इससे पहले उसने ये बताया है कि लार्वल स्टेजेस दे आर डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट एनिमल. एडल्ट एनिमल और एनिमल जब अपनी लार्वल स्टेजेस में होता है, बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो डेवलपमेंट यहाँ पे कैसा है, इनडायरेक्ट है. ठीक है, तो एग्जांपल्स में वी हैव साइकन स्पॉन्ज व्हिच इज आल्सो नोन एज स्काइफा, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज जिसका नेम है स्पॉन्जिला, एंड यू स्पॉन्ज जिसका नेम है बाथ स्पॉन्ज. ठीक है बेटे, तो दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम. फर्स्ट फाइलम दैट इज फाइलम Porifera. ठीक है, Porifera वर्ड का itself मीनिंग होता है four bearing animals. Okay बेटा, then we have another phylum and the another phylum is phylum Cnidaria, और जिसको हम कहते हैं phylum Coelenterata. ठीक है, phylum Cnidaria और phylum Coelenterata. तो see in phylum Cnidaria most of the members again they are the aquatic type of animals. ठीक है, तो phylum Cnidaria के जो members हैं वो भी aquatic members होते हैं और ओशियंस के अंदर होते हैं, मैरीन एनिमल्स होते हैं. ओके बेटे, तो मैरीन एनिमल्स हैं, सिसाइल फॉर्म्स आर आल्सो देयर एंड फ्री स्विमिंग एनिमल्स आर आल्सो देयर. तो कुछ फॉर्म्स जो है उसकी एक ही जगह पे बनी रहती है, दे आर नॉट मोबाइल. ठीक है, मोबाइल नहीं होती, एक ही जगह पे रहती हैं कुछ एनिमल्स. एंड सम ऑफ द फॉर्म्स दे आर द फ्री स्विमिंग एनिमल्स. कुछ एनिमल्स जो हैं वो फ्रीली स्विम करते हैं, जैसे आपको ये अम्ब्रेला शेप फिश नजर आती है जिसको ऑरिलिया कहती हैं, या फिर सिंपली इन योर वर्ड्स इट इज नोन एज जेलीफिश. ठीक बेटे, तो फ्री स्विमिंग एनिमल्स भी हैं, सिसाइल एनिमल्स भी हैं. तो सिसाइल एनिमल्स में हमें सी एनिमल्स मिल जाती हैं. उसके बाद देखो एनिमल्स जो है मल्टी सेलुलर है. ऑल द एनिमल्स आर द मल्टी सेलुलर एनिमल्स एंड दे आर अ लिटिल बिट एडवांस्ड ओवर द पॉरीफर्स. ठीक है, पॉरीफेरा जो है उसके मेंबर से थोड़े से एडवांस है ये, इसीलिए इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जगह पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज देयर. ओके बेटे, तो दो सेल्स व्हिच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन दे लेटर फॉर्म द टिश्यूज. तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सीन इन द मेंबर्स ऑफ फाइलम Cnidaria. Okay, another very important thing is why their name is Cnidaria. So you must remember because of the presence of nidoblast. ठीक है, या फिर nidocyte. तो इसके अंदर खास तरह के सेल्स होते हैं जिनको कि हम स्टिंगिंग, जिनमें स्टिंगिंग कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इन सेल्स को हम निडोब्लास्ट कहते हैं या फिर निडोसाइट्स कहते हैं. और इनके अंदर जो स्टिंगिंग कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको निमेटोसाइट्स कहते हैं. ठीक है, so why they have such type of cells? So with the help of these nematocytes they are able to capture their prey. ठीक है, अपना prey जो है उसको ये capture कर सकती हैं. They can also anchor their body with the substratum. किसी भी substratum के साथ अपनी body जो है उसको attach कर सकती हैं. And another very important thing is they also these cells also have a defense mechanism for protecting these animals from their predators. ठीक है, इनके प्रेडेटर से इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं. तो सेल्स का नेम याद रखेंगे, निडोब्लास्ट. देन जैसे स्पॉन्जेस के अंदर सेंट्रल कैविटी थी जिसका नेम स्पॉन्जोसील था, here also one central cavity is there and the name of that central cavity is a gastrovascular cavity. ठीक है, this cavity which is central cavity is gastrovascular cavity. ठीक है, और ये कैविटी जो है उसका एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसको कि हम इसका माउथ भी कहते हैं. एंड द नेम ऑफ द माउथ इज हाइपोस्टोम. ठीक है, HYPOSTOME, हाइपोस्टोम. So this is the single opening which is also considered as the mouth of the animal. ठीक है बेटे, another very important thing is cnidarians.
निटेरियंस जो है वो कोरल रीफ्स जो है उनका फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। यू हैव हर्ड इन फेरी टेल स्टोरीज अबाउट द व्हाइट कलर आइलैंड्स व्हिच आर नोन एज कोरल रीफ्स, ठीक है। ये कोरल रीफ्स जो है वो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि निडेरियंस का जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ होता है, और जब ये कैल्शियम कार्बोनेट्स जो है उनके डिपॉजिट्स को अपने हैबिटेट पे छोड़ देते हैं, तो बिलियंस ऑफ इयर्स तक व्हेन दिस कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट्स ओवर देयर दे फॉर्म द सॉइल व्हिच इज समवट वेरी हार्ड एंड टफ व्हाइट इन कलर, ठीक है। तो ये जो व्हाइट कलर के डिपॉजिट होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट्स के, वो काफी ज्यादा जगह पे स्टोर रहते हैं एंड ये कोरल रीफ आइलैंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, फिर देखिए निडेरियंस में आपको बताया कि निडेरियंस हैव टू बेसिक फॉर्म्स, ठीक है। निडेरियंस जो है इनमें दो तरह की फॉर्म्स देखी जाती हैं, वन इज पॉल्प एंड अदर इज मेडूसा। तो पॉल्प फॉर्म जो होती है वो सिसाइल होती है, ठीक है। सिसाइल सिलेंड्रिकल होती है। सिसाइल वर्ड का मतलब है दे आर नॉट मोबाइल, ये घूमती फिरती नहीं है, एक ही जगह पे रहती है, सिसाइल होती है और सिलेंड्रिकल शेप रखती है। एंड इसका एग्जांपल जो है उसमें हाइड्रा आ जाता है। यू हैव हर्ड अबाउट हाइड्रा, यू हैव आल्सो हर्ड अबाउट एडेम्सिया, एडेम्सिया जिसको कि हम सी एनिमोन भी कहते हैं, ठीक है। एंड मेडूसा फॉर्म्स जो है, मेडूसा फॉर्म्स आर द फ्री स्विमिंग फॉर्म्स, और जो मेडूसा फॉर्म है वो इनकी फ्री स्विमिंग फॉर्म्स होती हैं जिसमें ऑरेलिया आ जाती है व्हिच इज द जेलीफिश। तो सी these three pictures are of jellyfish, ये जेलीफिश के पिक्चर्स हैं 1 2 3 एंड 5th वाली, ठीक है बेटा। ये सी एनिमोन की पिक्चर है, ठीक। और इसके अलावा ये हमें टेंटाकल्स नजर आ रही हैं। सी एनिमोन्स में भी टेंटाकल्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रा में भी टेंटाकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो टेंटाकल्स की हेल्प से दे कैप्चर देयर प्रे, तो दे एक्ट एज देयर डिफेंस ऑर्गन्स। उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया टू फॉर्म्स हैं, पॉल्प फॉर्म एंड मेडूसा फॉर्म। पॉल्प फॉर्म हमेशा सिसाइल होती है, दे कैन नॉट मूव, एंड मेडूसा फॉर्म जो है वो मोबाइल होती है, फ्री स्विमिंग फॉर्म्स होती हैं। एग्जांपल ऑफ मेडूसा फॉर्म आर ऑरेलिया और जेलीफिश, एंड एग्जांपल ऑफ पॉल्प फॉर्म आर सी एनिमोन जिसको एडेम्सिया भी कहते हैं एंड हाइड्रा, ठीक है। उसके बाद देखिए निडेरियंस दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी व्हिच इज नोन एज मेटाजेनेसिस, means they can show alternation of generation. You have also heard this term in plant kingdom. Alternation of generation means the repetition of the phases. So here also we have two type of forms ना, pulp and medusa form. हमें पता है दो तरह की फॉर्म्स हैं, pulp form और medusa form। तो ये जो एनिमल्स होती हैं उनमें pulp animals medusa form में कन्वर्ट हो सकते हैं एंड medusa animals they are able to convert into the pulp form, ठीक है। कभी भी पॉल्प मेडूसा बन सकते हैं, मेडूसा जो है वो पॉल्प बन सकते हैं। ओके बेटे, तो कैसे बनती है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। तो पॉल्प प्रोड्यूस मेडूसा एसेक्सुअली, ऑलवेज रिमेंबर पॉल्प एनिमल्स जो हैं वो मेडूसा फॉर्म जो है मेडूसा कब फॉर्म करते हैं, जब वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, एंड मेडूसास जो हैं वो पॉल्प्स को कब फॉर्म करते हैं, जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर से सुनेंगे, पॉल्प जो है वो मेडूसास को तब फॉर्म करते हैं व्हेन दे अंडरगोस asexual reproduction, and the medusas they form polyps when they reproduce sexually. ओके बेटे, अब एग्जांपल्स अगर हमने देने हैं तो एग्जांपल्स में वी हैव फाइसेलिया। तो फाइसेलिया इज नोन एज पोर्चुगीज मैन ऑफ वार। तो इसको पोर्चुगीज मैन ऑफ वार जो है उसका नेम इसलिए दिया गया है फाइसेलिया का क्योंकि दिस एनिमल हैज अ वेरी हाई ग्रिपिंग पावर। ये एनिमल जो है अगर किसी चीज के साथ चिपक जाता है तो बहुत बुरी तरह से चिपकता है और उसको हटाना मुश्किल है, ठीक है। तो इसीलिए इसको पोर्चुगीज मैन ऑफ वार कहा जाता है बिकॉज देयर इज वन स्टोरी एसोसिएटेड विद दिस एनिमल। ओके, एंड व्हाट इज द स्टोरी दैट देयर वाज अ पोर्चुगल किंग, ठीक है। पोर्चुगीज एक किंग थे, उन्होंने जो है ही गेट डिफीटेड फ्रॉम सम अदर किंग, सो इन ऑर्डर टू कैप्चर द फोर्ट, ठीक है, उन्होंने अपना फोर्ट जो है उनको फिर से रिकैप्चर करने के लिए उस पे जो रोप्स लटकाई थी ना, उन रोप्स के जो टिप्स थे, ठीक है, उसके ऊपर जो है फाइसेलिया जो है उसको अटैच कर दिया था। तो व्हेन दे पुट दोस रोप्स ओवर द वॉल ऑफ द फोर्ट, तो ये एनिमल उससे चिपक गया था और उससे पूरी की पूरी उसकी जो आर्मी थी वो फोर्ट में एंटर कर गई। ओके बेटे, तो दिस इज द स्टोरी एसोसिएटेड विद फाइसेलिया व्हिच इज नोन एज पोर्चुगीज मैन ऑफ वार।
Another is Adamsia, which is known as a sea anemone. Then we have Hydra. ठीक है, some other colorful animals also come under this. Panatula, Panatula जिसको कि हम sea pen कहते हैं. तो sea pen जो है ये वैसा ही नजर आता है जैसे in the ancient times when the king they have to write a letter. ठीक है, तो they generally used one कलम, और वो कलम जो है वो मोर पंख से बनी होती थी. तो उसी तरह का इस एनिमल की बॉडी होती है, इसलिए हम इसको सी पेन कहते हैं. देन वी हैव गॉर्गोनिया व्हिच इज नोन एज सी फैन. ठीक है, इसको सी फैन कहते हैं, इसकी फैन लाइक बॉडी होती है. एंड मैंड्रेना व्हिच इज नोन एज ब्रेन कॉरल्स. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम सीलेंट्रेटा. ये फाइलम सीलेंट्रेटा के बारे में फिर से रिवाइज कर रहे हैं. मेंबर्स ऑफ द फाइलम सीलेंट्रेटा नोन एज निडेरियम. These animals are marine animals. Both type of forms are present, sessile forms and the free swimming forms. Okay बेटे. Another is symmetry कैसी है? Radial symmetry है. Body organization की बात करें तो tissue level of organization इसमें present है. Another very important thing is इनको nidaria क्यों बोला है? Because of the presence of special type of cells, nidoblast or nidocytes. And these cells contain nematocytes, which are stinging capsules. With the help of these nematocytes or stinging capsules, they are able to kill their prey. They protect themselves from their predators. Okay, buddy, and they are also used these stinging capsules on nematocyte for anchoring of their body too. They also have a central cavity. What is the name of that central cavity? Gastrovascular cavity. And this cavity have a single opening which is known as hypostome, which is actually the mouth of the animal. ये animal का mouth है. ठीक है बेटे. skeleton की बात करें तो skeleton is made up of calcium carbonate, and in their habitat the animal release so many calcium carbonate deposits, and because of this deposition of calcium carbonate deposits over many years, ठीक है, the soil it actually takes the form of an island, white islands which are known as coral reefs. Okay, another very important thing is cnidarians have two basic body forms. One is poulp, another is medusa. So poulp are sessile animals and medusa are the free swimming animals. Cnidarian also showing a very important property that is known as metagenesis, means they can show alternation of generation. Their poulp forms can form medusa, and their medusa form can be converted into poulp form. How the poulp form they form medusa? So by the method of asexual reproduction. And how the medusa form they form the poulp? So by the method of sexual reproduction. Okay बेटे, तो so many animals come under this. तो अगर आपको पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा निडेरियन है जो सबसे ज्यादा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है, तो आपका आंसर होगा ओबेलिया. ठीक है, तो कई सारे एनिमल्स आ जाते हैं इसमें. फाइसेलिया, पोर्चुगीज मैन ऑफ बार, मैंड्रेना which is known as brain coral, then sea anemone which is known as Adamsia, sea pen which is known as Panatula, and Gorgonia which is known as sea fan. Okay student, so this is all about the second phylum, that is phylum Cnidaria. Okay, proceeding with the next one, and the next is phylum Ctenophora. ठीक है, बहुत ही छोटा सा फाइलम है, फाइलम Ctenophora. तो कॉमनली दे आर नोन एज द सी वॉलनट्स. इनको सी वॉलनट्स कहते हैं. वॉलनट सबको पता है अखरोट होता है, तो इनकी बॉडी जो है वो वॉलनट के जैसी होती है, इसलिए हमने इनको नेम दिया है सी वॉलनट. ओके बेटे, सम नेटवर्क इशू इज देयर, नो प्रॉब्लम. थोड़ा सा टाइम रहता है, कोई बात नहीं. फॉर्म चैलीस भी हम इनको कहते हैं, सी वॉलनट्स भी कहते हैं. ठीक बेटे, मैरीन एनिमल्स हैं ये और इनकी बॉडी कैसी है? बॉडी सिमेट्री की अगर हम बात करें तो दे आर द रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स. ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं. टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स आर देयर, एक्टोडर्म एंड द इनर लेयर व्हिच इज नोन एज एंडोडर्म. ठीक है, बॉडी जो है उसपे 8 एक्सटर्नल सिलिएटेड रोज या कॉम्प्लेट्स होती हैं. इनकी बॉडी के ऊपर 8 सिलिया बियरिंग कॉम्प्लेट्स होती हैं, इसीलिए हम इनको कॉम्प जेलीज भी कहते हैं. ठीक है, और ये लोकोमोशन में हेल्प करती है. तो कल फिर से मैं ये फाइलम लूंगी. डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी है, इंट्रा सेलुलर भी है. बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी रखते हैं. दे कैन एमिट लाइट, ये लाइट एमिट कर सकते हैं. ओके बेटे, सेक्सेस इनमें सेपरेट नहीं होते.
तो मेल एंड फीमेल जो है वो सेपरेट यहाँ पे नहीं है, रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअल मेथड से होती है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, मींस लार्वल स्टेजेस एडल्ट स्टेजेस से डिफरेंट होती है। ठीक है, एनिमल्स में हमारे पास प्लूरोब्रैंकिया एंड टीनोप्लास्ट। ओके बेटे, तो कल मैं फिर से ये वाली जो है